participants. So Lokesh Pandey basically did BTech in Electronics and Communication Engineering from GV Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar in 2001. So Lokesh basically is a researcher, public speaker, singer, and sportsman. After engineering, he joined ST Microelectronics and he worked over there for 17 years. And at ST, he worked as project manager and carried out many research projects. And right now, he's a site level stress management trainer. And during college and after college at ST, he was very much involved in the sports also. So he used to play cricket, football, and he joined Art of Living in 2011 as a faculty, and he started teaching various Art of Living programs to different segments of societies like urban to rural youth, corporate professionals, slum dwellers, prisoners, etc. He has also been invited by various corporates like Samsung, R Systems, Tech Mahindra, and different universities like Shiv Nadar University and Bundelkhand University and others. So he is also a QCI certified yoga teacher under Ministry of Ayush, and he is a very good, we can say, singer and currently pursuing graduation in Hindustani classical vocal music. So now over to you, Lokesh. So over to you. So right now we are having 69 participants, and these participants are from different institutes. They are faculty members, researchers, scientists, and we are having some participants from research labs like DRDO, ISRO, SCL, Mohali, and maybe some participants from technical companies like ST, etc. And over to you, Lokesh. Yeah, thank you so much. It's my pleasure to present myself and students of your esteemed ask friends to switch on their video. Me on. Yeah, Lokesh, I am. Are you speaking something right now? No. No, I'm not. No. Okay. Yeah, I'm saying if you can ask all the participants to switch on their videos so that I can see them and have a good interaction with each other. So participants are requested to switch on their cameras for better interaction. So I request all the participants to switch on their cameras. So you will be having option to switch on your camera on the just right side of your name. Some participants have switched on their cameras, so I think Lokesh, you would be able to see them. I'm able to see. How are you? Your voice is breaking, Lokesh. Audible to
No, Lokesh sir, I think there is a speed bandwidth issue. मेरी आवाज भी नहीं गई। मैं तो कर सकता हूँ। हाँ एक है। अच्छा अरे यार ये वो तो ठीक है लेकिन ये व्यू चला गया मेरा। मैं व्यू में कैसे जाऊँ? Yeah. Now am I audible to all of you? Give me a thumbs up, please. Yeah. Divya. Yeah. I think now the voice is not breaking. Yeah. Perfect. So I would request all the students to please switch on your videos. I know ये 3 दिन का जो इंडक्शन होता है इसमें ऑनलाइन में करने में और भी डिफिकल्टी होती है. So I want मुझे लगता है ये सेशन में हम लोग थोड़ा सा इंटरेक्ट करें तो बहुत अच्छा होगा. Yes? What do you say? सिर्फ मैं ही बोलता रहूंगा थोड़े दिन में बोर हो जाएंगे आप. या तो कितने लोग ऐसे हैं जिन लोगों को सिर्फ हिंदी में ही चाहिए है ना? ऐसा तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है हिंदी इंग्लिश का. बोथ द लैंग्वेज आर ओके. या गिव मी अ थम्स अप ऑल ऑफ यू. ऐसे थम्स अप दिखा सकते हैं हम लोग है ना? थोड़ा सा डम शराट्स खेल लेंगे. ऑनलाइन में तो ऐसे ही होता है ना? द वन हु इज स्पीकिंग द अदर पीपल हैज टू लिसन एंड दे कैन यू नो जस्ट शो देयर जेस्चर्स. तो उसी से पता चलेगा कि आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे. या ओके. सो हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स हैं लाइक हु आर स्टडी? आई लाइक टू नो. यू कैन रेज योर हैंड. Who are still pursuing their studies. Yeah. Maybe graduation, post graduation or PhD. Yeah. Okay. Wonderful. अभी भी काफी लोगों ने वीडियो ऑन नहीं किया हुआ है. बट एनीवे ओके. तो जब हम आज जैसे आप लोग सब जानते ही हैं इस सेशन का जो टॉपिक है दैट इज माइंड मैटर्स. तो कितना इम्पोर्टेंट है ये यू नो नोइंग अबाउट योर माइंड. 1 से 10 के स्केल में हाउ मच यू विल रेट? अगर 10 इज द हाईएस्ट, 1 इज द लोएस्ट, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस मन को जानना, मन के क्या टेंडेंसीज हैं, मन का कितना रोल है हमारी लाइफ में, व्हाट इज द रोल ऑफ द स्टेट ऑफ आवर माइंड इन आवर लाइफ? इफ यू कैन जस्ट यू नो राइट इन द चैट बॉक्स और यू कैन जस्ट स्पीक अप. बात कर सकते हैं अरुण जी सब लोग. दे कैन यू नो टॉक इन बिटवीन. हाँ जी दे कैन टॉक. Yeah, or they can write in the chat box as well. Because this is my first experience in WebEx. Okay. मेरा तो Zoom की इतनी आदत हो गई है कि थोड़ा सा I'm not very used to of WebEx. तो आप सब लोग चैट पे लिख सकते हैं out of scale of 10. I think अच्छा ऐसे करते हैं. सबके लिए ऐसा लगता है कि knowing the tendencies of the mind, कि ये मन कैसे किस philosophy पे काम करता है, ये जानना आवश्यक है. कितने लोगों को लगता है? Yeah, you can raise your hand. Yeah, am I audible? अरुण जी आवाज आ रही मेरी? Yes. Yeah. Yes sir. जय. Yeah. So आपको आवाज आ रही है तो फिर आप तुरंत अपना एक्शन वगैरह दिखाइए और ना मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा यहाँ बैठे बैठे. मुझे पता ही नहीं चल पाएगा कि आवाज आ रही कि नहीं आ रही. ठीक है. So लगता है ना मन को जानना बहुत जरूरी है. आज हम अपने जीवन में जहां भी हैं, जो भी सक्सेस हमने हासिल करी है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ आवर माइंड. यस या अग्री करते हैं? वेरी नाइस. नाउ द क्वेश्चन कम्स, हम ये मन के बारे में कितना जानते हैं, है ना? कितना हम समझते हैं इस मन के बारे में? कभी हमें ख्याल भी आता है कि हाँ ये थोड़ा सा जान लें इसको, अपने मन को, ये कैसे इधर उधर भागता रहता है, फोकस नहीं हो पाता.
शायद ही कभी हमको ऐसा लगता है, यस और नो, क्योंकि रोज की भागदौड़ में हम इतना उलझ जाते हैं कि अपने ऊपर ध्यान ही नहीं जाता। हाँ, अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं? वी आर डूइंग स्टडीज, वी आर डूइंग पीएचडी, वी आर डूइंग आवर अपना जो भी हम अपने लाइफ में एस्पायर करते हैं सक्सेसफुल होने के लिए ना। यस, गिव मी अ थम्स अप। यस, विश्वनाथ जी जय। सक्सेसफुल होने के लिए हम ये जो भी कुछ कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई हो या कोई भी हम बिजनेस है या जो भी हम चाहें, इट इज ऑल टू अचीव सक्सेस। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि सक्सेसफुल होने के लिए हमें क्या क्या क्वालिटीज चाहिए, व्हाट आर द क्वालिटीज दैट वी नीड, क्या क्या हमारे अंदर गुण होने चाहिए, क्या क्या स्किल सेट होना चाहिए, सो दैट वी कैन अचीव वट एवर वी एस्पायर इन आवर लाइफ। या एनीबडी, कोई भी एक थोड़ा सा कुछ तो हिंट दीजिए, अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हैं। या विश्वनाथ जी आपका वीडियो ऑन है, आप कुछ बताइए कि आपको, आप अगर अपने लाइफ में अपने आप को सक्सेसफुल होते देखना चाहते हैं तो क्या स्किल सेट्स आपको चाहिए? या दिव्या? Participants, you can unmute yourself and you can participate. अच्छा रहेगा आप लोग पार्टिसिपेट करें ना तो मजा आएगा सेशन में। अनम्यूट करके आप लोग कर सकते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स हैं तो सबसे पहले मैं ही आंसर कर देता हूँ, कंसंट्रेशन सबको चाहिए ना। पढ़ने बैठते हैं लेकिन पढ़ाई के अलावा सब ध्यान इधर उधर जाता है ना। समटाइम्स इट इज वेरी हार्ड टू कॉन्सेंट्रेट। यस, आप थम्स अप दिखाते जाइए। ओके, और क्या क्या स्किल सेट्स चाहिए? कॉन्फिडेंस चाहिए, या एवरीबडी नीड्स कॉन्फिडेंस। टाइम मैनेजमेंट स्किल्स सबको चाहिए, यस, ऐसा कोई है जिसको नहीं चाहिए? अच्छा, बैलेंसिंग आवर लाइफ between our personal needs and all the professional aspirations which I am looking for, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाना, या हम सब लोगों को चाहिए? यस, टुगेदर विद दैट हमारे लाइफ में इतना अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं जिसके कारण इतना इमोशनल टर्मोइल रहता है, उसको थोड़ा बहुत बैलेंस कर पाना। कहीं ना कहीं ये जो नेगेटिव इमोशंस हमारे भीतर आ जाते हैं वो हमको आगे बढ़ने से रोकते हैं। यस, ठीक बात कर रहा हूँ ना? हाँ, थोड़ा सा यू कैन शो मी अ थम्स अप इफ आई एम सेइंग करेक्टली। या तो ये सारे जो क्वालिटीज हैं ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? फ्रॉम वेयर दीज क्वालिटीज ओरिजिनेट विद इन अस। आज तक ऐसा तो नहीं हुआ कि कहीं भी किसी स्कूल ने बोला हो कि हम कंसंट्रेशन एकदम बढ़िया से इंप्रूव कर देंगे, या किसी कॉलेज ने या किसी इंस्टीट्यूट ने, ऐसा तो नहीं हुआ। कॉन्फिडेंस एकदम बढ़ा देंगे, ऐसे नहीं हुआ। या फिर कहीं ऑनलाइन शॉपिंग में मिल जाता हो कुछ तो, है ना, ऐसे ट्रेनिंग लेकर के कि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए या कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाए या विल पावर बढ़ जाए, अंदर पॉजिटिविटी बढ़ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं। ये सारी की सारी क्वालिटीज ओरिजिनेट होते हैं हमारे भीतर से, फ्रॉम विद इन अस, फ्रॉम आवर ओन माइंड। यस, ठीक बात कर रहा हूँ। सम पीपल आर गिफ्टेड, दे हैव अ वेरी गुड concentration power. Some people are gifted, they have a very good confidence level. Some people are gifted who can very well manage their life. तो कुछ कुछ चीजें हमारे पास बाई नेचर हैं, लेकिन हमें सक्सेसफुल होने के लिए क्या सब कुछ चाहिए? ऐसा तो नहीं है कि कंसंट्रेशन अच्छा है लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं आता तो गड़बड़ हो जाएगी। टाइम मैनेजमेंट अच्छा है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है तो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो वी नीड ऑल द स्किल्स। ऐसा कुछ हो कि हम अपने सारे स्किल्स को हार्नेस कर पाए एट विल, दैट इज द ब्यूटी। देन यू कैन अचीव सक्सेस व्हेनेवर यू वांट, जब भी आप चाहें, जैसे भी आप चाहें। देन आवर जर्नी टुवर्ड्स आवर गोल विल बी स्ट्रेस फ्री एंड इट विल बी अ फन एंड जॉय। डू यू ऑल एग्री टू दैट? कहीं से हमको पता चल जाए कैसे हम अपने ये सारे जो स्किल्स हैं इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। Yes, do you all agree to that? Show me a thumbs up. That will encourage me, यार। इसलिए आप लोगों को लगेगा कि मैं बात, आपका काम सिर्फ इतना है, अच्छा लगे तो thumbs up ऐसे कर देना, बाकी और कुछ नहीं है। I don't want anything else. So that मुझे पता चलता रहेगा कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं and you are agreeing to me. Yes?
तब क्वेश्चन आता है कि ये स्किल्स को हार्नेस कैसे करें। पता तो हमें है ही, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, मम्मी पापा बोलते रहे फोकस करो, कंसंट्रेट करो अपने स्टडीज में, गुस्सा कम करो, लेकिन किसी ने सिखाया नहीं कैसे। है ना। और हम भी इतने इनोसेंट थे, हमने पूछा ही नहीं अपने माता पिता से, बताओ तो कैसे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। और पूछ लेते तो शायद उनको भी नहीं पता था। हमारे टीचर्स को नहीं पता, किसी को नहीं पता हाउ टू इम्प्रूव कॉन्सेंट्रेशन, हाउ टू हैंडल इमोशंस, तो ये सारी चीजें। नाउ क्वेश्चन कम्स अप, हाउ, या कैसे करें हम। So before that, I would like to, just introduce you to some tendencies of the mind. Are you all ready for that? Yeah. Are you all ready for that? So I have a question for you. हम सब ने एग्जाम्स दिए ना, आज तक एग्जाम्स ही देते आ रहे हैं। काफी लोग पूछ रहे होंगे कैसा सिली सा क्वेश्चन है ना। एग्जाम्स तो दिए हम सब ने, है ना। आपने नोट किया जब आप एग्जाम्स देते हो या कोई प्रोजेक्ट है आपका या कोई थीसिस है, जिस दिन उसका डेट होता है, डिलीवरी डेट होता है, अगर उस डिलीवरी डेट में 6 महीने या साल भर है या थोड़ा टाइम है, 2-3 महीने 4 महीने, हाउ इज द स्टेट ऑफ आवर माइंड? रिलैक्स होता है, यस, डू यू एग्री टू दैट? एकदम रिलैक्स रहता है ना, अच्छे से। 6 महीने अभी आप अपना प्लानिंग करते हो, धीरे धीरे यू मूव अहेड, यस। लेकिन अगर वो डिलीवरी या एग्जाम का डेट या थीसिस का सबमिशन रिपोर्ट अगर कल सुबह है, अभी क्या बज रहा है, अभी 3 बज रहा है, अगर कल सुबह 10 बजे है, सो व्हाट इज द स्टेट ऑफ आवर माइंड? हाँ, डू यू एग्री? एकदम फोकस रहेगा, एकदम स्ट्रेस में रहेगा, और खाना पीना भी छूट जाएगा, सारा ध्यान उसी सब्जेक्ट में, उसी थीसिस पर, वहां पर फोकस रहता है, यस, डू यू एग्री टू मी? गिव मी अ थम्स अप। या आई लाइक इट, नाउ यू आर गिविंग थम्स अप। ऐसे ही होता है। या फिर कोई भी काम हो, अगर उसका डिलीवरी कल है तो एकदम माइंड में उसके अलावा कुछ आता ही नहीं, खाना पीना सारी सुध बुध छोड़ करके सारा हमारा माइंड एक ही डायरेक्शन में फोकस रहता है या टेंस्ड रहता है। तो अगर हमारे पास बहुत ज्यादा समय है तो माइंड या तो हमारा रिलैक्स रहता है, अगर एकदम कल ही डिलीवरी है या कल ही एग्जाम है तो एकदम फोकस रहता है। But the natural state of the mind is focused and relaxed at the same time. Have you ever experienced that state? जहां पर आपका मन फोकस भी था और रिलैक्स भी था, कभी लाइफ में एक्सपीरियंस किया? Have you ever experienced? अगर किसी ने एक्सपीरियंस किया तो आप बता सकते हैं, when have you experienced that state of the mind, focused and relaxed? अनम्यूट करके बता दीजिए, कोई भी एक अगर बताना चाहे तो just unmute yourself and just tell me when you have experienced that state of mind. Okay, so I'll guess for you. Whenever you are doing your favorite thing, yes, आपको म्यूजिक पसंद है, आप म्यूजिक सुन रहे हो, at that time your mind is relaxed as well as focused as well, है ना। अपना फेवरेट सीरियल देख रहे हो, अच्छा मूवीज, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन मूवीज? कितने लोगों ने मूवीज देखी है ना, सबने मूवीज, या ओके। तो अभी मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था? तो मुझे लगता है ये अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो सब लोग पास हो जाएंगे विद फुल मार्क्स। यस और नो? पिक्चर एक बार देखी है, लेकिन आपने देखा है, हमने आज तक हजारों मूवीज देखी हैं, हजारों सीरियल्स देखे हैं, लेकिन अगर किसी की भी बात हो तो तुरंत हमें पता चल जाता है, हम बता सकते हैं कि उस मूवी का एक्टर कौन था, एक्ट्रेस कौन थी, क्या स्टोरी लाइनअप थी। कुछ लोगों को तो डायरेक्टर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स सब याद रहते हैं, यस रहता है ना। एक बार देखिए। और कभी ऐसा हुआ है कि हम जब कभी मूवी देखने गए बचपन में या अभी, तो हमको बोला जा रहा हो कि एकदम फोकस होकर के देखना, एकदम टेंशन मत लेना, ऐसे तो हुआ नहीं, कोई बोलता ही नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिकली हमारा फोकस वहां पर इतना जबरदस्त हो जाता है। अपनी फेवरेट चीजें जो करते हैं तो वहां पर भी हमारा फोकस एकदम कैसे रिलैक्स और फोकस स्टेट ऑफ द माइंड रहता है। तो हमारा मेमोरी और हमारा कॉन्सेंट्रेशन, मेमोरी पावर और कॉन्सेंट्रेशन तभी स्ट्रांग रहता है जब हमारा मन फोकस्ड और रिलैक्स्ड हो। लेकिन वो होता कब है? जो चीजें हमें पसंद है वो करने में। अगर स्टडीज किसी को पसंद है तो उसका मन स्टडीज में भी फोकस्ड और रिलैक्स रहेगा। हमें भी पसंद आती है जब हम नॉवेल्स पढ़ते हैं या कोई स्टोरी पढ़ते हैं, कॉमिक्स पढ़ते हैं, है ना, अपना फेवरेट कोई बुक पढ़ते हैं, तो वहां पर हमारा होता है
माइंड फोकस्ड एंड रिलैक्स्ड। लेकिन लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए हमें बहुत सारी चीजें ऐसी करनी पड़ती हैं जो हमारे इंटरेस्ट की नहीं होती। तो ब्यूटी ये है कि उस समय में हमारा माइंड फोकस्ड और रिलैक्स्ड हो सके, and we can achieve whatever we want. Sounds interesting? Yes. This is the first tendency of the mind, to be focused and relaxed at the same time, having the highest concentration, having the highest level of awareness, so that I can have a very good memory power. तो अगर ऐसा हुआ तो आपको याद करने के लिए और रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा है? All of you want that state of the mind? Yes. Yeah, give me a thumbs up. Yeah. Second tendency of the mind, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने लोगों के माइंड में डाउट्स आते हैं? How many of you doubts comes in mind? आते हैं ना, छोटे बड़े, कभी ना कभी तो हर एक को आते हैं, चाहे स्टूडेंट हो या हम टीचर्स हैं या सक्सेसफुल पीपल हैं। इवन द डाउट्स कम। यस। अच्छा, आपको डाउट आते हैं तो आप किस चीज पर डाउट करते हैं? पॉजिटिव चीज पर डाउट करते हैं या नेगेटिव चीज पर डाउट करते हैं? पॉजिटिव चीज पर डाउट करते हैं तो थम्स अप करिएगा, नेगेटिव चीज पर डाउट करते हैं तो ऐसे नीचे करिएगा। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ पे डाउट करते हैं या नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ पे डाउट करते हैं? अच्छा, अरुण जी कह रहे दोनों पे। क्या बात है। बट जरा गौर करिए अपने लाइफ में, डू यू डाउट द ऑनेस्टी ऑफ अ पर्सन और अ डिसऑनेस्टी ऑफ अ पर्सन? अगर कोई आपको बोले अरे हमारे सोसाइटी में एक बड़े सज्जन व्यक्ति आए हैं, वो बिल्कुल ऑनेस्ट हैं, एकदम ईमानदार हैं, उन्होंने आज तक कभी कुछ नहीं किया, या ऐसे बोलें कि अब तो ये जो आरटीओ ऑफिस है या गवर्नमेंट ऑफिसेज है उसमें तो करप्शन एकदम खत्म हो गया, सारे पीपल ऑनेस्ट हैं, तुरंत डाउट आ जाता है। यस, अच्छा वाकई में। लेकिन अगर बोले सब करप्ट है, हाँ सब करप्ट है, खुद भी उसमें हम बोलने लगते हैं, किसी काम के नहीं है। सो इन लाइफ यू डाउट द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। somebody in your family comes to you, या कोई भी व्यक्ति, कुछ खास व्यक्ति भी होते हैं हमारे लाइफ में, है ना, स्टूडेंट लाइफ में तो अक्सर होते हैं। तो आकर के आपको बोले आई रियली लाइक यू, आई रियली लव यू, तो अंदर से क्या निकलता है? आपके भाई बहन, आपके दोस्त या आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आपको आके बोलता है आई रियली लव यू, अंदर से क्या निकलेगा? रियली निकलता है ना। क्या चाहिए बताओ तुमको? क्यों इतनी मस्का लगा रहे हो? But if the same person comes and says, I really hate you, तो हम क्या बोलते हैं? अरे तुम क्या हेट करोगे? I hate you more, get lost. तब नहीं बोलते really? ऐसे होता है क्या? नहीं होता। This is the nature of the mind. We doubt the positive aspects. Similarly, we doubt our own capabilities. आपको अगर कोई कंपटीशन क्वालिफाई करना है, कोई प्रोजेक्ट शुरू करना है, या जो भी आपको सक्सेसफुल, जो भी आपका ड्रीम है अचीव करना, उसके लिए आपको कुछ भी बनना है, कोई स्टेप उठाना है, सबसे पहले खुद पर संशय होता है, खुद पर डाउट आता है, खुद की कैपेबिलिटीज, बिकॉज ऑफ दिस टेंडेंसी ऑफ द माइंड। बचपन में ऐसा नहीं था। छोटे बच्चे को बोलो अरे वो अंकल के पास मत जाना, वो खराब है, बच्चा तुरंत कहता है क्यों, ऐसे क्यों बोल रहे हो, वो खराब तो नहीं है। तो हम ऐसे तो पैदा नहीं हुए थे, लेकिन ड्यू ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ, एक्सपीरियंसिंग अप्स एंड डाउन्स, सक्सेस, फेलियर्स, हमारे ये मन का टेंडेंसी रिवर्स हो गया। तो हमने नेगेटिव को डाउट करने के बजाय पॉजिटिव पे डाउट करना शुरू कर दिया, एंड दैट्स हाउ वी लूज कॉन्फिडेंस। यस, मेक सेंस? कॉन्फिडेंस और कुछ नहीं है, अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, अपनी कैपेबिलिटीज पे डाउट करना, और ये मन का स्वभाव है। सेकंड टेंडेंसी। यस, थर्ड टेंडेंसी बहुत मजेदार है। कितने लोगों को गुस्सा आता है? हाथ खड़ा करें। काफी सारे लोग बोल रहे हैं हाँ मैं तो नहीं आता। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कभी ना कभी तो आया है ना, गुस्सा तो आया ही है लाइफ में। यस, ओके। अच्छा, कितनी बार ऐसा हुआ कि फ्रस्ट्रेशन रहा, एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए? कभी ना कभी तो ऐसा भी हुआ है, समय आया है, फ्रस्ट्रेशन हो गया, अरे सब बेकार है, कुछ नहीं करना, फ्रस्ट्रेट भी हुए। कभी कभी ऐसा भी लगा कि डिप्रेस्ड है, कुछ करने का मन नहीं है, कुछ नहीं करना, क्यों कर रहा हूँ लाइफ में ये सब, ऐसा होपलेस भी फील हुआ है कभी कभी। यस, या शो मी अ थम्स अप। मुझे पता है हम सब लोग ह्यूमंस हैं, जिसको नहीं है इसका मतलब वो पर ब्रह्म परम ज्ञानी अवतार हो चुका है उसका, है ना, ऐसे सबको होता है ऐसा। अच्छा, कितने लोगों को जेलसी होती है? मैं मतलब हाँ, फीमेल से तो नहीं पूछ रहा हूँ। मेल बता सकते हैं। आई एम सॉरी, आई एम जस्ट किडिंग, मैं हंसी मजाक के लिए ऐसे बोला।
हम जनरली जेलेसी को फीमेल से रिलेट करते हैं, लेकिन पता है क्या, मेल को भी बहुत जेलेसी होता है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ बहुत फनी है ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए। तो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, तो उन्हीं को मैं रिलेट करते हुए एग्जाम्पल दूंगा। हम जब भी कॉलेज जाते हैं, अभी तो खैर लॉकडाउन हो गया 2 साल से, या अपने आस पड़ोस में, घर परिवार में कोई खास व्यक्ति हमको अच्छा लगता है ना, अपने यंग एज में। यस, जो यंग एज पार कर चुके होंगे तो वो रिलेट कर सकते हैं, हाँ हमारी यंग एज में हमें भी कोई पसंद था या थी। यस और नो, कोई स्पेशल व्यक्ति हमें पसंद होता है। एक दिन वो व्यक्ति आपके पास आता है, आप अपने घर के बाहर खड़े होते हैं या कॉलेज में खड़े होते हैं, तो वो सामने से आपको आ रहा है और आपके अंदर से बहुत एक्साइटेड हो रहा है, अरे वो तो सामने से आ रहे हैं, आज लगता है बात बन जाएगी आज लगता है काम हो जाएगा। अब वो सामने वाले व्यक्ति ठीक आपके सामने आते हैं और बोलते हैं कि सुनिए, मैं आपसे बहुत टाइम से कुछ बात कहना चाह रहा था या चाह रही थी। तो अंदर से तो आई लव यू टू निकल रहा है बस, लेकिन आप बोल रहे हो हाँ हाँ बताइए क्या है, क्या कहना है आपको, बताइए। आप बड़े अंदर से बहुत एक्साइटेड है कि आज बात करने वाली। तो कहते हैं पता नहीं कैसे कहूँ, लेकिन बहुत ज़रूरी है आपसे कहना। तो वो बोलते हैं आपके जो बेस्ट फ्रेंड है ना, मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ या करता हूँ तुरंत सारे सपने चकनाचूर हो गए। जेलेसी भी आएगा अपने बेस्ट फ्रेंड के थ्रू, देखो वो तो एकदम जो है क्या आस्तीन के सांप निकले जिनको हम चाहते थे। ऐसे बहुत सारे इमोशंस आते हैं उस वक्त, है ना। एक बहुत छोटा सा एक उदाहरण दिया मैंने हंसी मजाक के, लेकिन हमारे लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होता। जो भी हम, चाहे कोई एग्जाम को क्वालिफाई करना हो, है ना, जो भी अपने लाइफ में टारगेट्स हमने सेट कर रखे हैं, अगर वो अचीव नहीं हो पाते तो हमारे माइंड में गुस्सा भी आएगा, फ्रस्ट्रेशन भी होगा, है ना। कोई और हो गया है, किसी और का सक्सेस देख करके अपने आसपास का जेलसी भी होगी, सब कुछ होगा। ऑल दीज फ्लड ऑफ इमोशन कम्स अप। यस, होता है मेनी अ टाइम्स। यस, तो जब भी ये फ्लड ऑफ इमोशंस आते हैं, डू यू फील रियली एक्साइटेड? ऐसे फेसबुक में हम स्टेटस अपडेट करते हैं, क्या फीलिंग एंग्री, आई एम ऑन अ सेवंथ स्काई, ऐसे होता है क्या? नहीं होता है ना। या आज क्या डिप्रेशन में एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मजा आ गया, ऐसे हम कभी बोलते हैं क्या ट्विटर पे या इंस्टा पे अपडेट डालते हैं क्या? ऐसे नहीं डालते। वी वांट टू गेट रिड ऑफ इट। यस, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इमोशंस हमको जकड़े हुए हैं। वी डोंट फील हैप्पी, वी वांट टू कम आउट ऑफ दीज इमोशंस। यस, करना चाहते हैं बट होता नहीं है। चाहते तो हैं हम, लेकिन होता नहीं है। कई बार तो ऐसा रहता है, कभी गुस्सा आ गया तो वो 1-2 दिन छोड़ो, हफ्ता हफ्ता, महीना महीना भी रह जाता है। यस, होता है। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम इमोशन में नहीं है। फ्रस्ट्रेशन का इमोशन है, एंगर का इमोशन है, सैडनेस का इमोशन है, या यू फील लाइक क्राइंग, ये सब इमोशंस है, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इज इन द एक्यूमुलेशन ऑफ इमोशंस। उसका आफ्टर इफेक्ट प्रॉब्लम करता है हमको। देखो, इमोशन तो बच्चे में भी होते हैं ना। आपने देखा है बच्चा कितना रोता है, उसको उसके खाने की चीज ना मिले तो जमीन पे लेट जाता है, इतना दहाड़े मार मार के रोता है जैसे अभी सारा जीवन खत्म हो गया इसका। होता है ना, इतने आंसू निकलते हैं उसके। लेकिन आप देखना, नेक्स्ट मोमेंट उसके आंख के आंसू सूखे नहीं होते हैं, उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाता है। उसको आइसक्रीम दिखाते या उसको गोद में उठाती है, उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाता है। ये होता है। लेकिन हमारे साथ में ऐसा होता है क्या? हम कर सकते हैं ऐसा? अब भी एकदम गुस्सा हुए, एकदम से मुस्कान आ गया, चेहरा एकदम बदल गया, हमसे नहीं हो पाता। सो हमारा माइंड क्या करता है, इमोशंस को इकट्ठा कर लेता है। तो इकट्ठा करके उसका जो आफ्टर इफेक्ट है, वो 1 दिन 2 दिन, कुछ घंटे, कुछ हफ्ते, महीने, कई बार तो साल भर वो प्रॉब्लम करता है। और ये इमोशंस के एक्यूमुलेशंस के कारण हमारे माइंड में क्लाउड्स आ जाते हैं, क्लैरिटी नहीं रहती करना क्या है, and then we get affected by the emotions that hampers ourselves in reaching our goals. होता है ना, कई बार इन इमोशंस का के कारण, इमोशंस में बह करके, भावनाओं में बह कर हम कुछ डिसीजंस ले लेते हैं अपने लाइफ में, एंड लेटर ऑन वी रिग्रेट। यस, होता है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस्ड दैट? लेटर ऑन वी रिग्रेट कम्स अप इन लाइफ। ये इमोशंस हमारे लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं। होना ये चाहिए कि वी शुड बी हैंडलिंग द इमोशंस, जब चाहे गुस्सा करा, जब चाहे उससे फ्री हो गए, है ना। सो इट शुड बी, द कंट्रोल शुड बी इन आवर हैंड, but it is the other way around. These emotions are handling us. So these are the 3 basic tendencies of the mind which I have just told you. You all are aware. हम सब, ऐसा नहीं है मैंने कुछ नई बात नहीं बताई. We all are
aware but we are not alert towards these tendencies. Yes, make sense? ठीक बात कर रहा हूँ? या यूं कह लो कि हमें पता तो है लेकिन हमें इसका सॉल्यूशन नहीं पता. हाँ ठीक है, हमें पता है कॉन्सेंट्रेट तो नहीं कर पाते, फोकस रिलैक्स नहीं हो पाता, लेकिन क्या करें? डाउट आता है लेकिन क्या करें, हमें पता तो है. सेल्फ में डाउट आता है लेकिन क्या करें? इमोशंस आ जाते हैं नेगेटिव, लेकिन क्या करें? फ्री होना चाहते हैं लेकिन क्या करें? तो क्या करें सुनना चाहते हैं सब लोग. और इफ यू आर रेडी फॉर दैट, नहीं इसमें तो आपको थम्स अप दिखाना पड़ेगा. आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू स्विच ऑन योर वीडियोस. अच्छा लगेगा मुझे भी एक बार, बिकॉज वी विल डू सर्टेन टेक्निक्स. हम सब कुछ थोड़ा थोड़ा हम लोग माइंड के लिए हम करेंगे, है ना. तो आप सब लोग अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए तो आई कैन सी ऑल ऑफ यू. लाइक या अनुपमा जी, या एवरीवन प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो. ओके, तो ये 3 टेंडेंसीज हमको पता चल गई, है ना. अब एक और सीक्रेट मैं बताता हूँ माइंड का, बड़ा मजेदार है. मन का स्वभाव है जिस चीज का जितना विरोध करोगे उतना ही होगा. यस. हम चाहते हैं, आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट दैट. मेरे को उस व्यक्ति के बारे में नहीं सोचना, उस घटना के बारे में नहीं सोचना, लेकिन रात भर उसी का ख्याल आता रहता है. यस, नींद नहीं आती. बगल में गाना चलता है, करवटें बदलते रहे सारी रात को, लेकिन नींद नहीं आती, बेचैनी रहती. क्योंकि ये मन वो बदमाश बच्चा है, उस छोटे बच्चे की तरह है. इस जिसको जो करने को मना करोगे वो वही करता है. आप सोचते हो कल सुबह सुबह मेरा ट्रेन है, मुझे घूमने जाना है, या फ्लाइट है 5 बजे का, जल्दी सो जाते हैं. आपने देखा उस दिन नींद आने में बड़ी मुश्किल होती है. कितने लोगों का अनुभव है, बड़ी देर से नींद आती है. और जिस दिन आप सोचते हो आज पूरी रात जाग करके पढ़ाई करेंगे, अपना रिपोर्ट जमा बनाएंगे, वो तुरंत झपकी आने लगती है. और आप सोचते हो कल तो नहीं आ रही थी, आज तो बड़ी झपकियां आ रही है, बड़ी नींद आ रही है, यार ये क्या चक्कर है. एंड देन यू गेट कंफ्यूज्ड. ये इसलिए होता है बिकॉज दिस इज नेचर ऑफ द माइंड. यू कैन नॉट हैंडल योर माइंड विद योर माइंड. जो भी लोग सोचते हैं हम अपने मन से मन को पक्का कर सकते हैं, वो गलत सोच रहे हैं. ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि भगवान ने ऐसे बनाया ही नहीं है. भगवान ने कुछ और दिया है मन तक पहुंचने के लिए. वुड यू लाइक टू नो? या यू कैन रीच टू योर माइंड विद ओनली वन थिंग, दैट इज योर ब्रेथ. आपकी सांस जो भी ले रहे हैं, वो मदर इन लॉ वाली सांस नहीं बोल रहा हूं मैं. हाँ. आपकी श्वास जिसको कह सकते हैं, योर ब्रेथ विच यू आर टेकिंग. कितने लोगों को लगा अच्छा हाँ ब्रेथ है क्या? यस. कितने टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना इस ब्रेथ को, कितना टेकन फॉर ग्रांटेड. अच्छा, डू यू इवन रियलाइज ड्यूरिंग द होल डे दैट यू आर ब्रीदिंग? कितने लोगों को एक्चुअली आभास भी होता है वो सांस ले रहे हैं? कितना टेकन फॉर ग्रांटेड है, याद भी नहीं आता. कभी कभी याद आता जब आप कुछ एक्सरसाइज कर रहे हो या भागना पड़े या कुछ थक गए हो, एट दैट टाइम आपका जो, हाँ अभी कोरोना में जिन लोगों को कोरोना हुआ होगा उन लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा ब्रेथलेसनेस. यस. काफी लोगों को तो ऑक्सीजन सिलेंडर की भी जरूरत पड़ी इस बीच में, है ना, फैमिली मेंबर. उस समय में पता चला इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेथ क्या है. अदरवाइज तो कभी याद ही नहीं आता सांस ले रहे हो आपकी नहीं ले रहे हो. बट that this breath has all the secrets which we have taken for granted. This breath is the bridge between your outside world, that is a physical world, your body, and your subtle world, that is called mind. आपके मन और आपके शरीर के बीच में जो लिंक है, जो कड़ी है, वो ब्रेथ है. जो ब्रिज है वो ब्रेथ है. अगर हमें नदी के एक पार से, एक सिरे से दूसरे सिरे में जाना हो तो या तो नाव से जाएंगे या ब्रिज से जाएंगे. तो ये नाव और ब्रिज आपका ब्रेथ है. या अच्छा, हैव यू नोटिस योर ब्रेथ इज ऑल द टाइम इन द प्रेजेंट? कितने लोगों ने नोट कर, अच्छा नोट तो क्या ही करा होगा आपने, तो ब्रेथ को ही नोट नहीं करा. अच्छा जस्ट नोट करो जरा अपनी ब्रेथ को. जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ इन, जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ फॉर फ्यू सेकेंड्स. डोंट यू थिंक इट इज ऑल द टाइम इन द प्रेजेंट? यस. अभी आधे घंटे पहले जो ब्रेथ ली थी वो अभी ले सकते हो क्या? अच्छा आधे घंटे छोड़ो, 5 मिनट पहले, 1 मिनट पहले वाली ब्रेथ, या जो अभी ऑब्जर्व कर रही थी वो ब्रेथ को अभी ले सकते हो क्या दोबारा? कैन यू टेक इट? नो.
अच्छा, कैन यू टेक 1 मिनट लेटर, जो 1 मिनट बाद जो आप ब्रेथ लेने वाले हो, या 15 मिनट जो ब्रेथ बाद जो ब्रेथ लेने वाले हो, उसको अभी ले सकते हैं क्या? कैन यू टेक इट? नो, इट इज ऑल द टाइम इन द प्रेजेंट। और जब हम अपना फेवरेट काम करते हैं, जब हमारा माइंड फोकस्ड और रिलैक्स्ड होता है, एक्चुअली आपने नोट करा है, हमारा माइंड बिल्कुल प्रेजेंट में होता है। हाउ मेनी ऑफ यू नोटिस्ड? Then only your concentration is maximum, highest. Then only your grasping power, your memory is highest when your mind is totally in the present. लेकिन जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो घड़ी घड़ी भाग रहा होता है, और कितना पढ़ना है, कल क्या होगा, कौन सा क्वेश्चन आएगा, who will be the examiner, मेरे जो वो हैं गाइड हैं वो क्या क्या पूछने वाले हैं मुझसे। ऑल द टाइम माइंड इज इन द फ्यूचर, अदरवाइज इट इज इन द पास्ट, रिग्रेटिंग द पास्ट। अरे मैंने उस समय में अच्छे से वो करते थे ना हम लोग, जिस एग्जाम में हम लोगों के खराब तैयारी होती है तो भगवान से प्रार्थना करते हैं बस एक मौका और दे दो, अगली बार एकदम बढ़िया से करेंगे। सो रिग्रेट कम्स अप पास्ट में जब माइंड जाएगा। तो पास्ट फ्यूचर में जब माइंड जाता है तो कंसंट्रेशन नहीं रहता। कंसंट्रेशन happens only when your mind is in the present and you have one thing which everybody is doing is your breath. With your breath you can bring your mind to present. We will do it right now. हम करेंगे अभी, है ना? How many of you would like to experience? कितने लोग experience करना चाहते हैं? Give me a thumbs up. Excited ना? हाँ, अभी तक ऐसे पता ही नहीं था, कहीं ये स्कूल कॉलेज कहीं यूनिवर्सिटी कहीं ये सब बातें बताई नहीं गई, किताबें तो दे दी गई बहुत बड़ी बड़ी, ये पढ़ना है ये तो बताया गया, लेकिन कैसे पढ़ना है ये बताया ही नहीं, किसी ने सिखाया ही नहीं। जीवन तो हमें मिल गया लेकिन जीवन कैसे जीना है ये सिखाया ही नहीं। So that's what I learned around 11 years before. 11 साल पहले मैं भी ऐसे ही जूझ रहा था अपने लाइफ में, और फिर हम ये मान के चलते हैं लाइफ तो ऐसा ही है, कुछ नहीं हो सकता। And then you know this art of living came into my life, and then I started practicing these things and I realized how this has changed my perspective, you know, towards my life. So हम उसका कुछ कुछ यहाँ पर थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा few techniques we'll practice, तो देखते हैं क्या होता है। yes, yeah, so we'll do some breathing techniques and then after that we will do a very short meditation. एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे आप, है ना? काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा मेडिटेशन। हाउ मेनी ऑफ यू हैव प्रैक्टिस्ड दैट? अच्छा, कितने लोगों ने किया नहीं है लेकिन अंदर से ऐसा लगता है ये तो ठीक है, होता है। मेडिटेशन है, कौन सी बड़ी बात है। यस, हाँ, आई नो इट। बहुत सा हम हिंदुस्तान में है ना, तो हमने ये शब्द तो बहुत सुना हुआ है बचपन से, मेडिटेशन, ब्रीदिंग टेक्निक्स, प्राणायाम, लेकिन एक्चुअली ये होता क्या है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है ये पता ही नहीं। प्राणायाम कितने लोग एक्चुअली आप बता सकते हैं प्राणायाम का एक्चुअल मीनिंग क्या है? व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय प्राणायाम? ये क्वेश्चन हमारे साथ के एक कलीग हैं, वो गए थे यूएस गए थे, वहां पर करीबन 100 पीपल वर देयर, और वहां पर उन्होंने सेम क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज प्राणायाम, व्हाट डू यू मीन बाय प्राणायाम। 70% लोगों ने एग्जैक्ट आंसर दिया था। बट ये हमारे देश का है, बचपन से हम सुनते आ रहे, ऐसे हमें लगता है हमें पता है, लेकिन एक्चुअली इसका जो एसेंस है दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। प्राणायाम, इसको हम ब्रेक करेंगे, प्राण प्लस आयाम। अब प्राण क्या है? प्राण इज योर सटल लाइफ फोर्स एनर्जी, आपकी ऊर्जा शक्ति। जब ये ऊर्जा शक्ति बड़ी भी होती है, देन यू फील एक्साइटेड, देन यू फील एंथुजियास्टिक, देन यू फील कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, कॉन्फिडेंस आ जाता है। जब जब ये ऊर्जा शक्ति, योर एनर्जी इज लो, तब आप बोलते हो ना आज बड़ा लो फील कर रहा हूं मैं, करते हैं ना, बोलते हैं ना। So when your energy is low, then all the negativity comes up, all the doubts comes up, and the mind goes past future. जो भी ये 3 tendencies of the mind है, ये provoke होती हैं कब? जब आपका एनर्जी लो होता है। When your energy is high, ये इनमें से कोई भी टेंडेंसी आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे, योर माइंड विल बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। सो प्राण is your subtle life force energy. Ayam is giving right direction, अपनी ऊर्जा शक्ति को सही दिशा देना, channelizing your energy is प्राणायाम।
डोंट यू थिंक इट इज नेसेसरी इन आवर लाइफ, स्पेशली इन आवर स्टूडेंट लाइफ, यंग लाइफ, जहां पर हमारे सामने पूरा जीवन है एंड वी कैन अचीव व्हाटएवर वी वांट। और अगर हम ये सीख लें कि अपने एनर्जी को मैं कैसे चैनलाइज करूं, then you can achieve whatever you want at will. There are thousands, millions of breathing techniques our ancient sages they have given. So we are going to practice it right now. Some breathing techniques that one breathing technique that is called Bhastrika. It is called Red Bull instant energizer. So whenever you feel dizzy, आपको लगता हो थकान हो रही है, एनर्जी लो हो रहा है, ये एकदम से आपके एनर्जी को बूस्ट अप कर देगा। आर यू रेडी फॉर दैट? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने एनर्जी को चैनलाइज करेंगे, राइट? जो भी हमारी एनर्जी स्कैटर्ड है उसको हम चैनलाइज कर देंगे एंड आफ्टर दैट वील मेडिटेट। सो मेडिटेशन इज डूइंग नथिंग। मन को अगर हमें शांत करना है, मन के विचारों को अगर हमें शांत करना है तो एक ही तरीका है मेडिटेशन, और कोई तरीका नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक पॉन्ड में पत्थर डालो तो क्या होता है, रिपल्स आती है ना, ऐसे तरंगें उठती है। यस, तो तरंगों को अगर आपको रोकना हो तो क्या करना होगा? आप ऐसे हाथ से रोक सकते हो क्या तरंगों को, पानी की? जैसे ही हाथ लगाओगे नई तरंगे आ जाएंगी, यस, और ज्यादा तरंगे आ जाएंगी। सो इट विल बिकम मेसी और स्कैटर्ड हो जाएगा। ऐसे ही हमारा मन है। अगर माइंड में हमारे बहुत कुछ थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स या पॉजिटिव थॉट्स या जैसे भी थॉट्स आ रहे हैं, अगर आप उनके साथ में लड़ने का प्रयास करेंगे, एफर्ट लगाएंगे, सो इट विल प्रोपगेट। इसीलिए मन का स्वभाव है व्हाटएवर यू रेजिस्ट दैट विल परसिस्ट। रेजिस्ट मींस यू आर पुटिंग एफर्ट्स। तो वेव को, पानी में जो वेव्स आ गई उसको शांत करने का तरीका क्या है? क्या करेंगे आप? कैसे शांत होगी वो? कैन एनीवन टेल? आप बस पॉन्ड के किनारे बैठ करके वेट करेंगे और वॉच करेंगे, थोड़ी देर में शांत हो जाएंगे। यस, सो दैट इज व्हाट मेडिटेशन इज। सिंपल है, जस्ट सिट एंड वॉच ऑल द थॉट्स जो हो रहा है हमारे भीतर। व्हाटएवर बाहर से आवाज आ रही है, आने दो, है ना, कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है, होने दो, माइंड में थॉट्स आ रहे हैं, आने दो, बॉडी में इचिंग हो रही है, कुछ हो रहा है, होने दो, जो भी हो रहा है उसको होने दो। आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। ये बेसिक रूल है। मुझे कुछ करना नहीं है इस वक्त, मेरी कोई इच्छा नहीं है, और मैं तो कुछ हूं ही नहीं इस वक्त, ऐसे खाली बैठना है मुझे। एंड देन सी द ब्यूटी, एकदम से आपका माइंड स्टिल हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, जैसे पॉन्ड का पानी। सिंपल है। तो हम ये प्रैक्टिस करेंगे हम लोग अभी, है ना? तैयार हैं सब लोग? आर यू ऑल रेडी फॉर दैट? या तो जहां कहीं भी है वहां पर आराम से बैठ जाइए और थोड़ा एकांत रख लीजिए अपने रूम में। अगर डिस्टर्बेंस है तो अपने घर में जो भी है उनको थोड़ी देर के लिए बोलना, बस 15-20 मिनट हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, ठीक है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, वील डू अ ब्रीदिंग टेक्निक। सबसे पहले भस्त्रिका। भस्त्रिका में क्या करते हैं, नॉर्मल एक बार सांस लेके देखिए, बहुत प्लेजेंट तरीके से आप इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं। यस, बहुत ही प्लेजेंट, एकदम शांत। भस्त्रिका में थोड़ा सा प्रेशर लगाएंगे, हल्का सा। कैसे? प्रेशर से सांस लेंगे, प्रेशर से, बहुत हल्का, बहुत ज्यादा नहीं। ऐसे नहीं कि कमरे की सारी हवा खींच लेंगे, ऐसे नहीं। ठीक है, हल्का सा जेंटल प्रेशर, ब्रीद इन एंड जेंटल प्रेशर, ब्रीद आउट। क्लियर? ऐसे करेंगे हम लोग, है ना? जिनको ब्लड प्रेशर है तो प्रेशर मत लगाना, नॉर्मल ही ले, और हाथों का पोजीशन ऐसे रहेगा, ठीक है? इट्स वेरी सिंपल। हाँ, और ये आपके जो एल्बोज हैं, ये एल्बोज आपके बॉडी से ऐसे कनेक्टेड रहेंगे, ऐसे ऐसे टच रहेंगे, ठीक है? दिस इज द पोजीशन। तो जैसे ही मैं कहूंगा ब्रीद इन, तो आप प्रेशर से सांस भरेंगे और आपके हाथ ऐसे ऊपर जाएंगे और मुट्ठी खुल जाएगी। हाथ एकदम सीधे कर देंगे, ठीक है? जैसे ही मैं कहूंगा ब्रीद आउट, प्रेशर से सांस छोड़ेंगे, हाथ नीचे आएगा और ऐसे मुट्ठी बंद हो जाएगी। क्लियर है सबको? बहुत सिंपल है ना? प्रेशर से सांस लेना और छोड़ना है। सांस ब्रीद इन कहा तो सांस भरेंगे, हाथ ऊपर जाएगा, मुट्ठी खुल जाएगी, और जैसे ही ब्रीद आउट कहेंगे, सांस छोड़ेंगे, हाथ नीचे आएगा, मुट्ठी बंद। क्लियर? ऐसे हम कुछ राउंड्स करेंगे, कुछ साइकिल्स करेंगे, आंख बंद करके। आंखें नहीं खोली। इफ यू विल ओपन अप योर आईज, योर एक्सपीरियंस विल गो, क्योंकि फिर माइंड चालू हो जाएगा, स्कैटर्ड हो जाएगा। आंख खोलेगा, जो भी देखेंगे वहां पे दौड़ने लगेगा। क्लियर? करें सब लोग? तैयार हैं? ऑल ऑफ यू रेडी? बढ़िया। So I can see you all. सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए so that I can see you are doing it correctly. Okay? So close your eyes. अब आपकी आंखें तब खुलेंगी जब मैं कहूंगा। बिल्कुल घबराइए नहीं, मैं यहीं रहूंगा, भागूंगा नहीं, ठीक है?
Yeah, close your eyes, take a normal deep breath in and breathe out. Now we will start भस्त्रिका प्राणायाम. थोड़ा सा प्रेशर लगा करके हम ब्रीदिंग करेंगे. ब्रीथ इन, हाथ ऊपर, मुट्ठी खुल जाएगी. पूरा हाथ को सीधा करें, कोहनी को सीधा करें. स्ट्रेच योर हैंड्स अप. ब्रीथ आउट, हाथ नीचे, मुट्ठी बंद. हाँ, एकदम तेजी से करना है, स्लो मोशन में नहीं. हाँ, ब्रीथ इन, हाथ ऊपर. ब्रीथ आउट, हाथ नीचे. ब्रीथ इन, अप, आउट, डाउन. ब्रीथ इन, अप, आउट, डाउन. Breathe in, up, out, down. Breathe in, out. 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 And relax. रिलैक्स करें, आंखें बंद, आंखें नहीं खोलनी है. और हाथों को अपनी गोदी में रख लीजिएगा आसमान की तरफ. हाथ नीचे, घुटनों के ऊपर, फेसिंग अपवर्ड. हथेलियां फेसिंग अपवर्ड होनी चाहिए. और पूरे शरीर को ढीला छोड़ते हैं. ऑब्जर्व द सेंसेशंस, द फ्लो ऑफ एनर्जी इन योर बॉडी. बॉडी में एनर्जी का जो फ्लो हो रहा है, जो सेंसेशंस हो रही है, वहां ध्यान ले जाना है. सारा ध्यान अपने शरीर की तरफ. और आंखें बंद रखते हुए सेकेंड राउंड के लिए तैयार हो जाएं. फिर से ढीली मुट्ठी कंधों के बगल में, जैसे पहले किया था वैसे ही करेंगे. सिंपल है. जैसे ही मैं कहूंगा ब्रीद इन तो प्रेशर से सांस भरेंगे, हाथ ऊपर जाएगा, मुट्ठी खुल जाएगी. जैसे ही मैं कहूंगा ब्रीद आउट, हाथ नीचे आएगा, मुट्ठी बंद हो जाएगी, सांस बाहर. तो भस्त्रिका से पहले एक साधारण सांस भरें और जाने दें. और पूरे जोश के साथ एक साथ करेंगे. ब्रीद इन, हाथ ऊपर, आउट, हाथ नीचे. ब्रीद इन, हाथ ऊपर, आउट, हाथ नीचे. ब्रीद इन, अप, आउट, डाउन. ब्रीद इन, अप, आउट, डाउन. ब्रीद इन, अप, आउट, डाउन. Breathe in, out. 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 And relax. Palms on your knees, open to the sky. हथेलियां घुटनों के ऊपर खुली हुई आसमान की ओर. Observe the sensations happening in your body. सारा ध्यान अपने शरीर की तरफ. Relax your whole body. Once again, get ready for the third and final round of भस्त्रिका प्राणायाम. फिर से ढीली मुट्ठी कंधों के बगल में, दोनों शरीर से लगते हुए आखिरी बार करेंगे हम लोग. फर्स्ट टेक अ नॉर्मल डीप ब्रेथ इन. लंबी गहरी सांस भरें और जाने देंगे. आंखें बंद ही रखें. Now we'll start भस्त्रिका with full force and energy. Breathe in, हाथ ऊपर, out, हाथ नीचे, मुट्ठी बंद. Breathe in, up, out, down. Breathe in, up, out, down. Breathe in, out. Breathe in, out. Breathe in, out. Breathe in, हाथ ऊपर, out, हाथ नीचे. Breathe in, out. 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 And relax. Relax करेंगे. Palms on your knees, open to the sky.
हथेलियां घुटनों के ऊपर खुली हुई आसमान की ओर। आंखें बंद ही रखें, क्लोज योर आईज एंड सिट कंफर्टेबली एंड इजीली। आराम से बैठ जाएं सो दैट योर स्पाइन इज इरेक्ट। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, आंखें बंद ही रखें, आंखें नहीं खुलेंगी। You can take a support on your back. It's absolutely fine, but your spine should be erect. We'll do a very short meditation. Just take a normal deep breath in and breathe out. Once again, take a normal deep breath in with a smile on your face, as if you are breathing for the first time. And slowly breathe out with a bigger smile. Now listen to all the sounds coming from your surroundings. आपके आसपास के वातावरण से जो भी आवाजें आ रही हैं, उन सभी आवाजों को ध्यान से सुनें। ट्रैफिक की आवाज हो, किसी के बात करने की आवाज। Do not resist any sound. किसी भी ध्वनि का विरोध न करें। Now you are at ease with your surroundings. Slowly breathe in and slowly breathe out. Become aware of your body. अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं। This body is a beautiful gift from God, from nature. Honor and respect your body. मन ही मन अपने शरीर का सम्मान करें। ये ईश्वर का दिया हुआ सुंदर उपहार है। And gently become aware of each and every part of your body. शरीर के एक एक अंग पर ध्यान ले जाएं। Take attention to your right leg. दाएं पैर को अनुभव करें। Just feel your right leg. Right knee, दायां घुटना, right thigh and right hip, दाईं जंघा और दायां कूल्हा, left leg, बायां पैर, बायां घुटना, left knee, बाईं जंघा और बायां कूल्हा, left thigh and left hip. Slowly breathe in and slowly breathe out. Relax both the legs. दोनों पैरों को ढीला छोड़ दें। Take attention to your genitals. जननेंद्रियों पर ध्यान ले जाएं। And
common stomach and navel region, पेट और नाभि पर ध्यान ले जाएं। चेस्ट रीजन, छाती पर, राइट शोल्डर, दायां कंधा, राइट हैंड, दायां हाथ, लेफ्ट शोल्डर, बायां कंधा, लेफ्ट हैंड, बायां हाथ, slowly breathe in and slowly breathe out. Take attention to your neck, गर्दन पर ध्यान ले जाएं। To your face, चेहरे पर, relax each and every muscle of your face. Relax your cheeks, गालों को ढीला छोड़ें, होठों को, पलकों को, माथे को ढीला छोड़ें, forehead, top of the head, slowly breathe in and slowly breathe out. Relax your whole body, पूरे शरीर को ढीला छोड़ें। Become aware of your breath. अपनी श्वास के प्रति सजग हो जाएं। See how your breath is going in to your lungs and coming out through your nostrils. देखें कैसे श्वास भीतर जा रही है और बाहर आ रही है। अपनी श्वास के प्रति सजग हो जाएं। Become aware of your breath. Become aware of the thoughts. विचारों के प्रति सजग हो जाएं। अच्छे विचार, बुरे विचार जैसे भी हैं, आने दें, रोके नहीं। Do not resist any thought. Like a witness, just watch them. साक्षी भाव से सभी विचारों को देखें। Become aware of the mind.
This body is like a bit of a candle. Mind is the light all around your body. शरीर बाती है और मन प्रकाश जो शरीर के चारों ओर फैला हुआ है। अपने मन के प्रति सजग हो जाए। Become aware of your mind. Become aware of your feelings, pleasant or unpleasant, however it is. Just be with them. मन में जो भी भावनाएं आ रही हैं उनके प्रति सजग हो जाए। सुखद या दुखद जैसे भी हो। You are peace and you are joy. आप शांत हैं, आप प्रसन्न हैं। Once again, become aware of your feelings if there are any. एक बार फिर अपनी भावनाओं के प्रति सजग हो जाए। Become aware of the thoughts if there are any. विचारों के प्रति सजग हो जाए अगर कोई है तो। Become aware of your body. अपने शरीर के प्रति सजग हो जाए। And surroundings. वातावरण के प्रति सजग हो जाए। And whenever you feel complete, taking your own time. Don't be in a hurry. Slowly and gently. You may open up your eyes. जब भी आपका मन करे अपना समय लेते हुए धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं, अपना समय लें। गुड मॉर्निंग। हाउ वाज इट? कैसा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है तो थम्स अप। इसमें तो आपको थोड़ा थोड़ा शेयर करना पड़ेगा, अपना नहीं पड़ेगा। हाँ, जो भी लोगों का वीडियो ऑन है, जो भी लोग इस वक्त कर रहे हैं, अपने आप को अनम्यूट करके थोड़ा थोड़ा बताइए कैसा लगा। अर्चना जी, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? आवाज नहीं आ रही है आपकी, अनम्यूट करके बताइएगा अपने आप को। हाँ, अभी आ रही। बहुत बहुत स्लो आ रही है आपकी आवाज, बहुत बहुत स्लो। हाँ, अच्छा लगा है ना? अच्छा, हाँ जी, बताइए 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 बताइए, कुछ कह रहे थे। हाँ, अपने अपने स्पीकर को ऊपर करके बताइएगा।
ओके ओके Yeah. Feeling that it's very different thing. वेरी नाइस। तो कितने लोग ऐसे लग रहा है जैसे आप, हाँ, आप सुबह उठ के फ्रेश होते हैं ऐसे हो गया? कितने लोगों को लग रहा है? अच्छा, कितने लोग ऐसे लग रहा है कि पूरा जो सेशन अटेंड कर रहे थे उसके कारण जो भी हैवीनेस हो रहा था माइंड में, या दिन भर के जो भी क्रियाकलापों के कारण हैवीनेस था वो भी शांत हो गया? कितने लोग ऐसे लग रहे? या नींद भाग गई ऐसे लग रहा है ना, एनर्जी होगी, चैनल एनर्जाइज हो गया ऐसे लग रहा है? दैट इज द ब्यूटी। देखो अभी हमने कितना करा है, मुश्किल से 15 मिनट नहीं करा है, इतना सिंपल है अपने आप को रिजुवेनेट करना। अरे देखो, जब हमारे फोन के बैटरी का डैश चार्जिंग आ गया है तो हम लोग तो इतना जबरदस्त इंस्ट्रूमेंट है ऊपर वाले का दिया हुआ, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम चार्ज अप ना हो पाए? हमको पता नहीं है। सो दैट्स व्हाट दीज ब्रीदिंग टेक्निक्स एंड दिस मेडिटेशन डज। और सारे स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत जरूरी है ये सीखना। तभी तो जो हमने किया ये बहुत स्मॉल नेट प्रैक्टिस है, जो मतलब जिसको कहते हैं ना प्रिलिमिनरी। सो आई हैव लर्न सुदर्शन क्रिया। सुदर्शन क्रिया इज, आप में से हो सकता है काफी लोगों ने सीखी भी होगी ये। इट इज एन अमेजिंग टेक्निक। मतलब मैं तो इसको जब किया था तो मुझे ऐसा लगता था, अरे मैंने पहले क्यों नहीं किया, पहले किया होता तो लाइफ कुछ और होती, आई वुड हैव बीन मोर प्रोडक्टिव इन माय लाइफ। बट ठीक है, जब किया उसके बाद से ज्यादा प्रोडक्टिव है। सो व्हेनेवर यू गेट टाइम, आप अपने आसपास में कहीं भी, कितने लोग हैं ऐसे कि इसको और अच्छे से सीखना चाहते हैं, दीज टेक्निक्स अबाउट आवर ओन माइंड, है ना, अपने आप को थोड़ा और अच्छे से जानना चाहते हैं। सारा जीवन हम भागते रहते हैं खुद के बारे में। वो कहते हैं ना, अपना फोन नंबर लगाओ तो आता है यहाँ की सारी लाइनें व्यस्त हैं। है ना? हाँ, तो ऐसा ही है। तो हम अपने बारे में कभी सोचते ही नहीं। हमें लगता है हम आप दूसरों का जीवन अच्छा कर दें, लेकिन पता है क्या, आप अपना जीवन अच्छा करोगे तो आपके आसपास के लोगों का जीवन वैसे ही अच्छा हो जाएगा। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा देखिए ना कितना एनर्जाइज्ड होता है, कितना एक्साइटेड होता है, बिकॉज वो हमेशा वर्तमान में रहता है। आप भी अपने बचपन के दिनों को इसीलिए मिस करते हो, पता है? क्योंकि उस समय में हमारा मन वर्तमान में रहता था, इसलिए हम ज्यादा खुश थे, वी वर मोर हैप्पी। काफी लोग बोलते हैं कि अरे उस समय में टेंशन नहीं थी। ऐसा नहीं है, बहुत टेंशन होती है बच्चे को, कब किस बात पे उसको थप्पड़ पड़ जाए पता ही नहीं होता। है ना? कोई भी काम फ्रीली नहीं कर सकते बच्चा। उस बाहर बारिश हो रही है, अभी देखो रेनी सीजन शुरू हो गया, मानसून आ गया, उसका मन करता है बाहर जाके नाचूं, खेलूं, नाव चलाऊं, लेकिन हो नहीं पाता, है ना? हम अपने माता पिता के दायरे में सीमित थे हमारा जीवन आज, लेकिन हम उस वक्त को ज्यादा मिस करते हैं। आज देखिए हम अपने जीवन में ज्यादा फ्री हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन आज हम उतना खुश महसूस या नहीं करते, उन दिनों को मिस करते हैं। जानते क्यों? क्योंकि जब हम छोटे थे तो भले ही बाहर रेस्ट्रिक्शंस थे, लेकिन हमारा मन फ्री था। आज क्या हो गया, बाहर से फ्री है लेकिन हमारा मन रेस्ट्रिक्टेड है। इसीलिए ये सीक्रेट है। चाहते हैं ना बचपन का फ्रीडम वापस आ जाए, उसके लिए करना होगा, और कोई चारा ही नहीं है, भगवान ने ऐसे ही बनाया। है ना? वो कहते हैं ना कि फोन को चार्ज करना हो तो वो जो टाइप सी वाला चार्जर ही लगेगा। आईफोन में आपका एप्पल में लाइटनिंग केबल ही लगेगी, उसमें टाइप सी नहीं लगेगा। तो ये बाई मैन्युफैक्चरिंग ही ऐसा है कि अगर आपको रिजुवेनेट होना है, अपने माइंड को फोकस करना है, रिलैक्स होना है, लाइफ में ज्यादा जोश में, कॉन्फिडेंस में, ये सब क्वालिटीज आपको चाहिए, तो यही तरीका है। आपको अपना एनर्जी को चैनलाइज करना पड़ेगा। ओनली ब्रेथ इज द लिंक। सो इसमें आप सीखते रहिए सब, बहुत सारी चीजें ना। मेडिटेशन वो करिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन को तो बहुत सिंपल सा, अब मैं क्या ही समझाऊं, इसको समझाना तो बहुत मुश्किल है। एक मेरा छोटा सा प्रश्न है, अगर आपको अपने घर से एयरपोर्ट की तरफ जाना हो या दूसरे सिटी में जाना हो, और अगर आप दिन में निकलेंगे तो कितना टाइम लगेगा? 3-4 घंटे लगेंगे, 3 से 4 घंटे, यस लगेंगे। लेकिन अगर आप सुबह सुबह निकलते हैं तो क्या 4 घंटे लगेगा? कम समय लगेगा, यस। 1-2 घंटा ही लगेगा ना, जल्दी पहुंच जाएंगे। 1-1.5 घंटा 2 घंटा हम सेव कर लेते हैं, यस। इसलिए बोलते हैं कहीं लंबा जाना हो तो सुबह सुबह निकल जाओ ताकि टाइम कम लगे। वी आर इंटेलिजेंट, लेकिन ऐसे ही होता है। अच्छा, इसका कारण क्या है? देखो डिस्टेंस तो सेम ही है ना,
तो ऐसा क्यों कि दिन में जाते हैं तो ज्यादा टाइम लगता है और सुबह सुबह जाते हैं तो कम टाइम लगता है? क्योंकि दिन में ट्रैफिक बहुत होता है। यस, तो रियल लाइफ में हम ट्रैफिक को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं? सुबह सुबह निकलते हैं। लेकिन अपने लाइफ में ऐसा नहीं करते। हमारे लाइफ में थॉट्स का कितना ट्रैफिक है, उसमें डाउट्स भी हैं, उसमें इमोशंस भी हैं, सब कुछ इकट्ठा हो रखा है हमारे माइंड में। तो मेडिटेशन क्या करता है? डीक्लटर कर देता है, रास्ता साफ कर देता है आपका। तो आपको माइंड में डिसीजन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एकदम जैसे कहते हैं ना, वो सर्दियों के टाइम में कोहरा होता है तो दिखता नहीं है कहाँ जाना है, तो कोहरा हटता है तो साफ दिखता है। ऐसे ही हमारे मन के अंदर वो कोहरा है डाउट्स का, नेगेटिविटी का। तो मेडिटेशन से क्रिया, ये सुदर्शन क्रिया, ब्रीदिंग टेक्निक से सब करने से क्या होता है? वो क्लाउड हट जाता है, तो फिर मजा आ जाता है जीवन में। ऐसा है इसीलिए फिर जीवन की मुस्कान बनी रहती है। वरना कहते हैं एक बच्चा, एक छोटा बच्चा जो होता है वो एक दिन में 300 बार मुस्कुराता है, 300 से 400 बार। फिर थोड़ा बड़ा होता है तो 17-18 बार मुस्कुराता है एक दिन में। और जैसे ही आप 2-3 बार मुस्कुराते दिन में, समझ जाओ 30 क्रॉस कर लिया है और थोड़े और बड़े होते हैं तो फिर ना खुद हंसते हैं ना सामने वाले को हंसने देते हैं। बोलते हैं हंस क्यों रहे हो, सीरियस रहो तो ये है। तो वापस अगर अपने जीवन में वही उत्साह, वो खुशी, वो एंथुसियाज्म, वो प्रसन्नता चाहते हैं तो खुद को समय देना होगा। आप करिए, ये सीखिए जैसे भी आपको मौका लगता है। और बाकी अरुण जी के साथ तो हम साथ में ही हमने पढ़े हैं, तो अरुण जी और मैं कलीग्स हैं। तो आप कभी भी, आपको कोई हेल्प चाहिए तो यू कैन ऑलवेज कांटेक्ट मी फॉर एनी हेल्प। एनी क्वेश्चंस, आपको कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं मेरी तरफ से तो हो गया आई एम तो डन। आपके मन में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। Thank you, Lokesh, for this wonderful session. So now I request participants, if they have any queries, they can raise their hands. I will unmute you, or you can unmute yourself. या अपने लाइफ से रिलेटेड या स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड जो भी कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हो। अगर मैं दे पाया तो दे दूंगा, नहीं दे पाया तो आपको ये विश्वास रखिए आंसर मिल जाए यू कैन आस्क। क्या You can raise your hand. There are options, or you can unmute yourself. Right side there is option for unmuting. Or you can type your question in Q&A. हाँ, ये अच्छा है, Q&A में आप टाइप करके बता दो। देखिए प्रश्न दो ही स्थिति में नहीं आते हैं, पता है ना आपको रूल पहला रूल है या तो सब समझ में आ गया दूसरा है सारा ऊपर से चला गया एंड आई थिंक पहले वाला ही होगा, है ना? अगर प्रश्न नहीं आ रहा है तो पहले वाला ही होगा, सब समझ में आ गया है। कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क। Can you see, Lokesh? Yeah, I can see. Yes. Yeah. So there are questions. Few questions have already been there. अच्छा, ऑलरेडी बीन देयर। Q&A में देखना पड़ेगा। Yeah. अच्छा, क्या प्रश्न है? How to reduce mental frustration? This is the question by Anindya Bose. अरे तो वो तो अभी बता दिया तरीका थ्रू ब्रेथ ओनली। फ्रस्ट्रेशन क्या इमोशन ही है ना। हाँ, और फ्रस्ट्रेशन क्यों होता है? देखो माइंड में बहुत सारे क्लटरिंग है, ये करूं ये करूं ये करूं ये करूं। आपने देखा जब भीड़ होती है तो चलने की जगह नहीं मिलती। ऐसे ही हमारे माइंड में जब थॉट्स की भीड़ होती है तो हमको चलने की, कैसे आगे बढ़ूं ये नहीं मिल पाता, इसलिए फ्रस्ट्रेशन होती है। मैं कर नहीं पा रहा, कुछ चाहता बहुत हूँ, चाहता हूँ रोज सुबह उठ के अपना पढ़ाई करूं, अपने लाइफ में टाइम के हिसाब से सब डिसिप्लिन होकर के करूं, होता नहीं है बिकॉज माई एनर्जी इज स्कैटर्ड, माई माइंड इज स्कैटर्ड। तो उसको एकदम हमें स्कैटर्ड माइंड को लाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना होगा? ब्रीदिंग टेक्निक्स, मेडिटेशन, यू हैव टू लर्न मेडिटेशन। सुदर्शन क्रिया अगर सीख सकते हो तो वो सीख लो, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। बिकॉज आई टीच सुदर्शन क्रिया इन डिफरेंट कॉलेजेस ऑल्सो। तो जो बच्चों का जो इफेक्ट है, जो लोगों का एक्सपीरियंस है, वो अमेजिंग है। तो इसके अलावा कोई चारा नहीं है।
अदरवाइज तो पूरे लाइफ लॉन्ग हमारे पेरेंट्स भी आज तक ये बात से स्ट्रगल कर रहे हैं कि फ्रस्ट्रेशन को कैसे दूर करें। माय पेरेंट्स आल्सो, सो आई टोल्ड देम क्रिया करो, डू सुदर्शन क्रिया, लर्न ब्रीदिंग टेक्निक्स, नाउ दे आर डूइंग इट, दे आर हैप्पी। इट्स लाइक दैट। Dr. Richa, I have unmuted you. You can ask your question. या रिचा जी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए अपना, and you can ask a question. Hello, sir. Am I audible? Yes, yes, you are audible. Okay, sir. It was a wonderful session, and we feel energetic after your 15 minutes session. Thank you so much for this. And I share my experience with you that I'm doing yoga from last 2 years, and I feel better day by day. So Wonderful. I suggest to all the participants, kindly spare some time for yourself. बिकॉज Yes. हम अपनी भाग दौड़ की जिंदगी में अपने लिए समय निकालना भूल जाते हैं. सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, बी हेल्थ कॉन्शियस एंड बी स्पेयर सम टाइम फॉर योरसेल्फ, जो आपका मी टाइम हो सिर्फ, जिसमें आप अपने आप को एनालाइज करो. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू रिचा जी फॉर योर वंडरफुल थॉट्स. बिल्कुल डॉक्टर रिचा जी ने बिल्कुल सही बात कही है, और इस वक्त तो बहुत जरूरी है अपना इम्यूनिटी को बनाना. भले आपको वैक्सीनेशन लग गया हो, सब कुछ हो, तो ये ब्रीदिंग टेक्निक्स और ये जो इस समय का जो ये पेंडेमिक है, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो शरीर पे असर करती हैं. ये सिर्फ शरीर पर ही नहीं, ये मन पर भी असर करती है. तो बहुत जरूरी है इस वक्त के समय में ब्रीदिंग टेक्निक्स करना, और साथ ही साथ में मेडिटेशन करना. और जैसा डॉक्टर रिचा ने कहा, योगा को बहुत सारे लोग सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज तक ही छोड़ देते हैं. योगा, पहली बात तो योगा नहीं है, इट इज योग. योग का अर्थ होता है जोड़ना किससे? खुद से जोड़ना, है ना. तो योग कैसे? आसन, प्राणायाम और ध्यान, फिजिकल एस्पेक्ट, ब्रीदिंग टेक्निक्स एंड मेडिटेशन, ये 3 चीजों से मिलकर के योग बनता है. तो सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट तक मत रहना, तीनों चीजें करना. डू सम फिजिकल थिंग्स, एक्सरसाइज, योगासनास, and then do some breathing techniques together, and after that sit for 10 minutes for meditation. Then the complete this yoga will happen. Okay, अच्छा है. Dr. Jasveer Kaur, I'm unmuting you. Please, you can ask. Dr. Jasveer Kaur. No. Okay. हाँ, और भी जो भी हो आप टाइप कर सकते हैं, कोई भी मन में प्रश्न हो तो. Kiran Rathi, you can ask. वैसे होता है ऐसा, मेडिटेशन करने के बाद एक्चुअली सारे प्रश्न खो जाते हैं. बिकॉज माइंड कम्स टू द प्रेजेंट, सो डजंट मैटर इवन इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन. सो एंजॉय दिस स्टेट ऑफ द माइंड. एक्सप्लोर इट मोर, बिकॉज यू ऑल आर स्टूडेंट्स. एक्सप्लोर मोर. अभी तो मैंने आपको जो बताया वो बहुत बेसिक चीजें बताई हैं मन के बारे में. एक्सप्लोर मोर, अपने बारे में और जानिए. अपने देखो ना, ये फोन है, इसको तो हम पूरा नया फोन लेते हैं, पूरी इसकी रिसर्च करते हैं. लैपटॉप लेते हैं, कुछ भी गैजेट्स लेते हैं, पूरा रिसर्च करते हैं. ये इतना सुंदर, सबसे जो खूबसूरत जो इंस्ट्रूमेंट है वो ये है. इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करिए, 10-15 मिनट, 20 मिनट. आई नो यू ऑल विल फील एक्साइटेड इन लाइफ. ऐसा है. सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर टाइम. Okay, Dr. Manish, your comments. लोकेश सर थैंक यू. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपने बड़ा अच्छा हमारे को एनलाइटन किया सर. मेरा एक छोटा सा प्रश्न है सर आपसे. जी. हालांकि मैं खुद भी जिज्ञासु हूँ इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए, और मैं प्रैक्टिस करता हूँ मेडिटेशन भी बहुत, बट मैं कभी डिफरेंशिएट नहीं कर पाया डीप स्लीपिंग एंड मेडिटेशन में क्या अंतर है. बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया. सेम ही महसूस होता है, बट जी. द डिफरेंस ऑफ. बहुत सुंदर आपने प्रश्न पूछा है. ये जिन्होंने इसका अनुभव किया है वही ये प्रश्न को पूछ सकते हैं. एक्चुअली पहली चीज तो मैं थोड़ा सा मेडिटेशन के बारे में बताना चाहूंगा.
काफी सारे मैं अभी सुन भी रहा था, तो मेडिटेशन इज नॉट कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन इज द आउटकम ऑफ मेडिटेशन, मेडिटेशन इज दी कॉन्सेंट्रेशन, कहीं भी किसी भी चीज पे ध्यान को फोकस ना करना। ओके, और जस्ट मेरा वीडियो ऑफ हो गया है शायद। हाँ, तो क्या होता है, मन की 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था होती है जागृत अवस्था, अवेकन स्टेट। सेकंड स्टेट होती है स्लीप स्टेट, सुषुप्तावस्था, है ना, जिसमें हम सोते हैं। थर्ड स्टेट होती है सपना, जब सपने आते हैं, ड्रीमिंग स्टेट। एंड द फोर्थ स्टेट इज द मेडिटेटिव स्टेट, जिसको हिंदी में तुरीयावस्था कहा जाता है। अब इन चारों स्थिति में अंतर क्या है, ये समझिएगा सारे। जागृत अवस्था में यू आर फुल्ली अवेयर, पूरी तरह से हम जागृत होते हैं, बट अवर माइंड इज नॉट एट रेस्ट। हमारा मन में रेस्ट नहीं होता, माइंड इज नॉट एट रेस्ट। स्लीप स्टेट में वी आर, अवर माइंड इज फुल्ली एट रेस्ट, बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। हम जागृत, उस वक्त हमें पता नहीं होता क्या चल रहा है। ड्रीमिंग स्टेट इज द मोस्ट डेंजरस स्टेट, जिसमें नाइदर वी आर एट रेस्ट नॉर वी आर अवेयर। ना तो हमको रेस्ट मिलता है, इसलिए आपने देखा जिस रात सपने आते हैं तो अगले दिन जो है पूरे दिन सर में दर्द रहता है। ये अनुभव है ना, काफी सारे लोगों का अनुभव होगा। जिस वक्त आपको सपने आते हैं जिस रात को, उस दिन सुबह सर भारी रहता है ना, बिकॉज यू हैव नॉट टेकन रेस्ट। आपका मन को रेस्ट नहीं मिलता, नाइदर यू आर अवेयर। फोर्थ स्टेट इज द बेस्ट स्टेट, दैट इज द तुरीयावस्था, जिसमें आप पूरी तरह से जागृत भी होते हैं और आपके मन को पूरी तरह से रेस्ट भी मिलता है। बोथ आर एट द सेम टाइम। इसीलिए आप जब आप ध्यान कर रहे थे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप सो गए हैं, लेकिन जैसे ही मैंने कहा धीरे से आंखें खोलें, तो आपने आंखें खोल ली। लेकिन अगर आप डीप स्लीप में होते तो आपको हिलाना पड़ता है, अरे जगो जगो जगो। अगर कोई आपसे आकर के कहे धीरे से जग जाइए, आंखें खोलिए, तो आप आंखें खोलोगे नहीं। तो ये अंतर है, बहुत पतली, देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन मेडिटेशन एंड स्लीप। तो ये जो है समझने वाली बात है। बहुत अच्छा, थैंक्स फॉर आस्किंग डॉक्टर मनीष हुडा फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आई आंसर्ड। या ऑफ कोर्स सर, यू आंसर्ड सर। Yeah. एक छोटा सा सवाल और है, जैसे हमारे जी। सभी दुखों का कारण है कि हम सक्सेस के पीछे भागते रहते हैं। जी। जैसे शुरू में बोला कि सक्सेस को प्राप्त करने के लिए आपको क्या क्या फॉलो करना चाहिए। जी अगर हम किसी चीज से कंपेयर करना ही छोड़ दें, जी इसी तरह ऐसा संभव भी जी। है कुछ हद तक, जैसा शायद सर आप भी मानते जी। होंगे। आपने भी जी अपना करियर इंडस्ट्री से शुरू किया, फिर किसी कारणवश आप इस तरफ आए, बहुत अच्छी डायरेक्शन की तरफ, और हमारे जैसे लोगों को हेल्प करने के लिए डेफिनेटली आई जी जी। अप्रिशिएट सर। तो क्या ऐसी कोई अवस्था है जैसे आप कंपेयर करना छोड़ दीजिए किसी चीज के साथ, तो डेफिनेटली यू जी। आर वेरी क्लोज टू द मेडिटेशन और यू नो मेकिंग योरसेल्फ काम। और जी। जैसा आपने एग्जांपल दिया, पानी में पत्थर डालना, लहरों को शांत होने देना बाहर बैठ के, जी। ऐसा कुछ और मैकेनिज्म कुछ आप? एक्चुअली देखिए, मैकेनिज्म तो मैं नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि हम ऐसे ही हैं। हम ऐसे ही पैदा हुए थे। देखिए छोटा बच्चा कहाँ कंपेयर करता है यस ना। यस सर। वो कहाँ से कहानी शुरू हुई, मैं आपको बताता हूँ। कहानी शुरू थी क्लास 10th से, जब हमारे माता पिता हमारे पास आके बोलते हैं कि 10th में अच्छे मार्क्स लाओगे तो जीवन आगे बहुत अच्छा रहेगा, बिल्कुल सर। बहुत खुश हो जाओगे, बहुत सक्सेस मिलेगी। तो हमें लगने लगा कि अच्छा हाँ, और फिर बोलते हैं 10th में अच्छे, माता पिता, काफी सारे लोगों के पेरेंट्स ने ऐसे बोला होगा कि जो तुम्हारी इच्छा है वो हम पूरी करेंगे। मेरे पिताजी ने भी ये बोला था, उस समय साइकिल का जमाना था, तो उन्होंने कहा था कि तू 10th में फर्स्ट डिवीजन आएगी तो मैं तेरे को साइकिल दूंगा। तो मुझे लगने लगा अच्छा, सक्सेस का अर्थ है कुछ पाना। तो 10th क्लास तक, या उस आजकल तो वो 10th नहीं, वो पहले ही होने लगा है। 5वीं 6वीं में ही माता पिता इतना प्रेशर डाल देते हैं, बेटा IIT की जाना है तुमने, मेडिकल लाइन में जाना है, तो बेचारे का तो जीवन ही खत्म है। तो हम एक्चुअली, जैसा आपने प्रश्न पूछा कि ऐसी कोई मैकेनिज्म है, कैसा है, वो मैकेनिज्म हमारे अंदर इनबिल्ट है। हम ऐसे ही पैदा हुए थे, वी आर इनबॉर्न लाइक दैट। अब ये क्या है, इट मैकेनिज्म कुछ नहीं है, वी कैन बी अवेयर। जो भी, जैसे भी हम पैदा हुए थे उस पर धूल लड़ गई है। धूल किस चीज की है? डाउट्स की, ये कंपैरिजन की। एक्चुअली देखा जाए तो आपका कंपैरिजन किसी और से है ही नहीं, खुद से है।
हर इंसान इस धरती पर अपने अपने जीवन को अपनी अपनी दिशा में जी रहा है। अब मैं उसको देखता रहता हूं तो मैं अपने आप से उसको कंपेयर करना शुरू कर देता हूं। उसकी दिशा अलग है, मेरी दिशा अलग है, और वो दोनों अलग अलग है, सेपरेट है। इवन इन हस्बैंड वाइफ की भी दिशा अलग अलग है। तो ये मेरा मन कंपैरिजन शुरू कर देता है, क्योंकि 10th क्लास में हुआ था, शर्मा जी के बेटे के तो 98% आए और तुम्हारे जो है 90% आए, तो वहां कंपैरिजन शुरू हो गया। तो वहां से हमारा मन ये दुविधा में, ड्यूअलिटी में पड़ना शुरू हो गया। तो दिस ड्यूअलिटी कैन बी इरेज्ड ओनली थ्रू विजडम, एंड द विजडम कम्स अप। वो उसके लिए भी ध्यान ही करना पड़ेगा, मेडिटेशन ही करना पड़ेगा। एक और एनालॉजी देता हूं, आप देखिए, एक पॉन्ड है, पॉन्ड का एग्जांपल लूंगा। अगर बहुत तेज आंधी तूफान बारिश आई है तो क्या रहता है, आपने देखा उसमें डर्ट आ जाती है, और आप फिर वो पॉन्ड का जो पहले एकदम क्लियर उसका जो तल है वो जो दिखाई देता था, आज वो नहीं दिखाई देता, उसमें धूल आ जाती है, तो वी कैन नॉट सी थ्रू द वाटर। यस, लेकिन जैसे ही हम शांत हो जाता है, थोड़ी देर वो कुछ समय रुक जाता है, तो सारी डर्ट नीचे बैठ जाती है, उसके बाद हमें उसका तल जो है क्लियर दिखाई देने लगता है, अपना चेहरा दिखाई देने लगता है उसमें। अदरवाइज वो जिसमें मिट्टी है, मडी वाटर में आपको अपना चेहरा नहीं दिखाई देता। ऐसे ही हमारा जीवन है, अगर जैसा हम पैदा हुए थे वैसे ही हम चाहते हैं वापस आ जाएं, यानी वी सी द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सेल्फ इन आवर लाइफ, फॉर दैट वी नीड टू क्लियर दैट क्लाउड्स फ्रॉम आवर माइंड। इसीलिए हमारे शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने जो भी ये ज्ञान दिया, भगवत गीता कह लीजिए, पतंजलि योग सूत्र कह लीजिए, या जो भी हैं, जो भी विजडम की जो बुक्स हैं, वो हमारे माइंड के जो डाउट्स का जो भी नेगेटिविटी है, या जो भी कह लीजिए जो द्वंद है, उसको हटाने के लिए। तो थ्रू आवर साधना, थ्रू आवर चैनलाइजिंग आवर एनर्जी, थ्रू मेडिटेशन एंड a little bit of wisdom, this can clear all the doubts from our life, and we can be the way we were born. ऐसा मुझे लगता है। जी जी जी, और ये बहुत आसान है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका कीमती समय निकालने के लिए हमारे लिए। और मनीष जी लोकेश जी कह रहे थे कि 10th में पेरेंट्स कहते हैं कि पढ़ लो कुछ अच्छा हो जाएगा, तो लोकेश जी जब हम लोग बीटेक में थे कहते थे 8085 पढ़ लो तो एसटी में जॉब लग जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी यही बोलता था, लेकिन अब थोड़ी अवेयरनेस आ गई है। एसटी बदल गया इस समय। जी जी जी, हमने 8085 पढ़ नहीं पाए, तो इसलिए हम एसटी जा नहीं पाए। पर सर आप एसटी से बहुत ऊपर हो सर। टीचर का जो स्थान है जिंदगी में, वो शायद आप मतलब इमेजिन नहीं कर सकते। आप कितने एसटी क्रिएट कर रहे हैं, आपको अंदाजा नहीं है सर। जी बिल्कुल, मेरा भी यही मानना है। both of you, both of you, नहीं, बिल्कुल मेरा भी यही मानना है। एक शिक्षक का जो रोल रहता है, वो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, और ये हमारे देश की विडंबना है कि यहाँ पर शिक्षक को उस दृष्टि से वो जो उसको दर्जा है वो नहीं मिलता। Yes sir, that's somewhat unfortunate, but yes sir, हम तो अपने शिक्षकों के प्रति आज भी वही कृतज्ञता जाहिर करते हैं सर। इवन इनफैक्ट कोई भी टीचर है आज भी हमारे सामने, हमारे लिए वो एज गॉड ही है। थैंक यू सर। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। So with this I think let's conclude the session, and now I thank Lokesh Pandey ji for delivering such a wonderful session, and forcing us to do little bit of medicine, and guiding us to how to we can say that how to manage the stress, and how we can move ahead in our lives. So thank you very much Lokesh for joining us, and it was a wonderful session. Earlier Lokesh used to teach us subjects during our BTech time. Now he taught this meditation for the first time for me. So thank you very much, and thank you everyone for joining us. Okay, bye bye everyone.